सुप्रभात बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब लोगों ने पोर्शन ऑफ ब्लूप्रिंट क्लास वर्क नोटबुक में लिख लिया? हैव यू ऑल नोटेड द पोर्शन एंड ब्लूप्रिंट इन योर क्लास वर्क नोटबुक? उसके साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि अनुच्छेद लेखन भी आप लोग देखकर लिख लीजिए। तो आप सब लोगों ने लिख लिया है ना अनुच्छेद लेखन? हैव यू ऑल कंप्लीटेड पैराग्राफ राइटिंग इन योर क्लास वर्क नोटबुक्स? ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। ओके, तो हम लोग पिछले सेशन में हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन और जो थोड़े प्रश्न उत्तर हम लोगों ने पुनरावृत्ति किया था, तो फिर भी आज भी हम लोग एक बार व्याकरण क्या क्या है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद फिर से एक बार हम लोग अनुच्छेद लेखन को दोहराएंगे। ठीक है बच्चों, उसके साथ ही साथ हम लोग लघु दीर्घ उत्तर भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले व्याकरण। ठीक है, हम लोगों को व्याकरण कितने मार्क्स के लिए है? 8 मार्क के लिए है। तो यहाँ पर 8 मार्क के लिए मैंने दिया था कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और लिंग। ठीक है, और उसके साथ साथ शब्द विच्छेद करना, यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल पाठशाला दिया जाएगा तो पाठ प्लस शाला, वैसे हम लोगों को करना है। तो हम लोगों को कल ऑनलाइन सेशन है ना ट्यूसडे, मैं उस दिन आप लोगों को एक बार कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो चलिए अब हम लोग पहले पर्यायवाची शब्द में है, मैं यहाँ पर जितने शब्द दिए हूँ आप लोग उसको ही अच्छी तरह से पढ़िए, उसको ही प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो हियर I am given some synonyms. Okay, so from our grammar book so many synonyms we are having. In that I had given only 5 synonyms, children. So according to that you learn these 5 synonyms. So first 5 synonyms, if you are observing in your grammar book, that one it will be there. So that words only you have to learn. Okay, so मैंने यहाँ पर दिया है. Those who are not collected the grammar book, so you can see and prepare here. Okay, पहला जो है आंख, आंख यानी नयन, नेत्र. Okay, so आंख means eyes, nayan also eyes only, netra eyes. Okay, one word only it is having different one meaning only, it is having different words. Okay, वैसे ही आग, आग, agni we can write, anal we can write, pavak also we can write. Okay, here we have to learn only 2 only ma, in our book 3 had given, 2 is enough for us. Okay, anal, pavak. वैसे ही अंधकार, अंधकार means darkness, for that अंधेरा, tam, tamir also is there. Okay, so here I gave only 2 words, अंधेरा, tam. Next, fourth one, anand. Anand means happiness, which means harsh, khushi. Like that only. Fifth one, admi. Admi, nar, manav, manish also is there. So here I gave simple meanings. That one is nar, manav. These are the paryavachi shabd. Okay children, next if we are going and seeing vilom shabd na, so first one is suputra. Suputra, kuputra. Okay, suputra opposite is kuputra. So you can ask ma'am what is the meaning of suputra. आप लोग पूछ सकते हो मैम सुपुत्र का अर्थ क्या होता है? सुपुत्र यानी सुपुत्र यानी सिर्फ एक जो सन होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं सुपुत्र. वैसे ही कुपुत्र, malnourished होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कुपुत्र. कुपुत्र, सुपुत्र. वैसे ही अनुज, जो एंगरवन होता है उसे अनुज कहा जाता है. अग्रज, अग्रज means those who are elders, they know, for them we are calling agraj. Okay, anuj means younger, agraj means elder. Like that only shist, shist, ashist. Shist means
Sist means here we can tell like as a decent. Okay, sist means decent we can say, or otherwise polite also we can say. Ashist means vulgar, rude. Okay, so here polite meaning, shist means polite, ashist means rude, like that we can say. We can take here labh. Labh means profit, hani means loss, we know that thing. Ardh. Ardh means here we can take like as a meaning, otherwise explanation, or otherwise finance, like that we can say. Denotement, like that we can take. But anarth means disaster. Okay, arth, anarth. So these are the vilom shabd. Please go through this, which one I am giving from book, grammar book. So please learn this vilom shabd. Next, come we'll see ling. Chidha, male bird. Chidhiya, female one. Like that only Shriman. So with respect we are calling no Shriman, Shrimati. Like that only Bakara, Bakari, Bhagwan, Bhagavati, God, Goddess. Sikshak, Sikshika. Sikshak means teacher. Sikshika means, yes, Sikshak means male teacher. Sikshika means female one. Okay. So these are the linga. So everyone repeat with me. सब लोग मेरे साथ दोहराइए बच्चों. आंख, नयन, नेत्र. आंख, नयन, नेत्र. आग, अनल, पावक. आग, अनल, पावक. अंधकार, अंधेरा, तम. अंधकार, अंधेरा, तम. आनंद, हर्ष, खुशी. आनंद, हर्ष, खुशी. आदमी, नर, मानव. आदमी, नर, मानव. अगेन, आंख, नयन, नेत्र. आग, anal, pavak. All these synonyms you had learnt in previous year. Andhakar, andhera, tam. Anand, harsh, खुशी. आदमी, नर, मानव. Again, आंख, नयन, नेत्र. आग, अनल, पावक. Repeat with me. अंधकार, अंधेरा, तम. Tomorrow I will ask, we are having online session, no? In that I will ask. आनंद, हर्ष, खुशी. आदमी, नर, मानव. विलोम शब्द. If you want to write these things now, you can write in rough notebook. सुपुत्र, कुपुत्र. अनुज, अग्रज, शिष्ट, अशिष्ट. लाभ, हानि. अर्ध, अनर्ध. One more time. सुपुत्र, कुपुत्र. अनुज, अग्रज, शिष्ट, अशिष्ट. लाभ, हानि. अर्ध, अनर्ध. One more time. सुपुत्र, कुपुत्र. अनुज, अग्रज, शिष्ट, अशिष्ट. लाभ, हानि. अर्ध, अनर्ध. नेक्स्ट, लिंग बदलिए. चेंज जेंडर. चिढ़ा, चिढ़िया. श्रीमान, श्रीमती. बकरा, बकरी. भगवान, भगवती. शिक्षक, शिक्षिका. One more time. चिढ़ा, चिढ़िया. श्रीमान, श्रीमती. बकरा, बकरी.
भगवान, भगवती, शिक्षक, शिक्षिका। वन मोर टाइम। चिढ़ा, चिढ़िया, श्रीमान, श्रीमती, बकरा, बकरी, भगवान, भगवती, शिक्षक, शिक्षिका। Okay children, learn all the synonyms, opposite words and genders. Which one I had to in revision? This one only. Okay children, now come, we'll do the reading practice of Anuched Lekhan paragraph writing. First one, Mera Priya Tyohar, my favorite festival. That one is Holi. Everyone repeat with me. होली रंगों का त्योहार है। इसे 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन शाम को होलिका दहन होता है और दूसरे दिन सुबह सभी लोग रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। बच्चे बड़े सभी हाथों में रंग लेकर एक दूसरे को रंगते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। घर पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। होली में सबके चेहरे रंग बिरंगे हो जाते हैं और ये रंग होली के दूसरे दिन भी रहता है। होली में सब जोर जोर कहते हैं, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। होली की ये गूंज होली को मेरा प्रिय त्योहार बना दिया। वन मोर टाइम। होली रंगों का त्योहार है। इसे 2 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन शाम को होलिका दहन होता है और दूसरे दिन सुबह सभी लोग रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। बच्चे बड़े सभी हाथों में रंग लेकर एक दूसरे को रंगते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। घर पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। होली में सबके चेहरे रंग बिरंगे हो जाते हैं और ये रंग होली के दूसरे दिन भी रहता है। होली में सब जोर जोर कहते हैं, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। होली की ये गूंज होली को मेरा प्रिय त्योहार बना दिया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज वेरी इजी, यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो। मेरा विद्यालय, माई स्कूल। मेरा विद्यालय का नाम शिवानंदा राजाराम CBSE स्कूल है। ये बहुत बड़ा है। इसमें
मॉन्टेसोरी से 12वीं तक की कक्षाएं हैं। मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय के सामने एक बड़ा सा मैदान है जिसमें हम खेलते हैं, पीटी करते और प्रार्थना करते हैं। ये विद्यालय मरेमले नगर में स्थित है। मेरे विद्यालय में एक प्रधानाचार्य जी है जिसका नाम शिवगामी है। ये पूरे विद्यालय को संभालती है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो वातावरण स्वच्छ और सुंदर रूप देते हैं। विद्यालय में पीने का पानी और शौचालय दोनों की सुविधा है। मुझे मेरा विद्यालय काफी पसंद है। अगेन, मेरा विद्यालय का नाम शिवानंदा राजाराम CBSE स्कूल है। ये बहुत बड़ा है। इसमें मॉन्टेसोरी से 12वीं तक की कक्षाएं हैं। मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय के सामने एक बड़ा सा मैदान है जिसमें हम खेलते हैं, पीटी करते और प्रार्थना करते हैं। ये विद्यालय मरेमले नगर में स्थित है। मेरे विद्यालय में एक प्रधानाचार्य जी है जिसका नाम शिवगामी है। ये पूरे विद्यालय को संभालती है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो वातावरण स्वच्छ और सुंदर रूप देते हैं। विद्यालय में पीने का पानी और शौचालय दोनों की सुविधा है। मुझे मेरा विद्यालय काफी पसंद है। Okay children, these two are the Anuched Lekhan paragraph writing. Learn nicely because this Anuched Lekhan we are going to have for 6 marks. Okay. So if you want to add some more points, you can add, you can write it your own also. Okay. Now come, we'll see the Laghu Uttariya Prashna. So already we did the reading practice, this thing. Again I am doing tomorrow. Everyone please write Anuched Lekhan in classwork notebook. Tomorrow I am going to check that things. Okay. Those who are not writing, I will inform to ma'am. First one. चिड़िया के जीवन में अन्न, विजन तथा नदी का क्या महत्व है? You had learned this question. चिड़िया के जीवन में अन्न, विजन और नदी का विशेष महत्व है। चिड़िया झुंडी के दाने खाकर संतोष कर लेती है। एकांत वन में बूढ़े वन बाबा को प्रसन्न करने के लिए खुलकर गीत गाती है और उफनती नदी से जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर अपनी प्यास बुझाती है। One more time. चिड़िया के जीवन में अन्न, विजन तथा नदी का क्या महत्व है? उत्तर, चिड़िया के जीवन में अन्न, विजन और नदी का विशेष महत्व है। चिड़िया झुंडी के दाने खाकर संतोष कर लेती है। एकांत वन में बूढ़े वन बाबा को प्रसन्न करने के लिए खुलकर गीत गाती है और उफनती नदी से जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर अपनी प्यास बुझाती है। सेकंड क्वेश्चन,
लेखिका ने अपने समय और वर्तमान समय के बीच की दूरियों को किस प्रकार व्यक्त किया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखिका ने अपने समय और वर्तमान समय के बीच आई दूरियों को व्यक्त करते हुए कहा कि पहले लोगों के पास सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करते थे, अब तो टीवी, रेडियो सब कुछ है। पहले की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में और फालसे, शहतूत, खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में बदल गए हैं। वन मोर टाइम, लेखिका ने अपने समय और वर्तमान समय के बीच की दूरियों को किस प्रकार व्यक्त किया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखिका ने अपने समय और वर्तमान समय के बीच आई दूरियों को व्यक्त करते हुए कहा है कि पहले लोगों के पास सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करते थे, अब तो टीवी, रेडियो सब कुछ है। पहले की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में और फालसे, शहतूत, खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में बदल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? किस तरह के सवाल उठते थे? अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? घोंसला कैसा है? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? इस तरह दोनों के दिलों में तरह तरह के सवाल उठे। वन मोर टाइम, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? उत्तर, अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? घोंसला कैसा है? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? इस तरह दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठे। ओके, everyone please go through this and learn all the things which one I had took in revision. If you are having any doubt, you can ask in our group, or otherwise you can ask in the comment box also. Okay children, please do the nicely practice. Tomorrow we are going to have an online session. In that online session, to everyone I will ask that Anuchhed Lekhan and these questions also. Okay, so that grammar also, please sit and learn. It will take hardly half an hour. Okay, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में बाकी के जो प्रश्न उत्तर है उसका भी एक बार हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।